Good morning, student. Today I am teaching you social science for class 8th, and this is your chapter 2nd. In this chapter 2nd, I have covered small topics in my previous videos. Now in this video, I'll cover your main topic, that is Battle of Buxar 1764 and expansion of the company's rule in India. So before this Battle of Buxar, I taught you in my previous video about the Battle of Palsi, which is be fought between Nawabs of Bengal called Sirajuddaulah and East India Company called the Britishers. Okay. This war is fought between them in 1757 and now Battle of Buxar. So this war is in the sun 1764. So when Mir Zafar, who was called a puppet ruler, could not meet the ever-growing demands of the company, he was disposed and replaced by Mir Qasim as the Nawab of Bengal. So in my previous video I told you that Mir Zafar is one of the soldier in the army troop of Sirajuddaulah, जिसने गलत तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया था, and then Britishers get the easy way to defeat Sirajuddaulah. Then they make Nawab to Mir Zafar. Now, ever-growing demands of the company, which Mir Zafar not able to fulfill. After this, he has been replaced by Britishers थ्रू द मीर कासिम. तो मीर कासिम को वहाँ का नया नवाब बना दिया गया बंगाल का, बट मीर कासिम रिफ्यूज टू बी पपेट रूलर. अब जो मीर कासिम थे, इन्होंने पपेट रूलर बनने से मना कर दिया. ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड इट्स आर्मी. तो मीर कासिम चाहते थे कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव किया जाए और आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए. ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द यूरोपियन आर्मी. तो जिस तरह से यूरोपियन आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, हेयर मीर कासिम ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रेन his own soldiers like the European army. He trained his soldiers on the basis of line of the European army. He also tried to stop the corrupt trade practice of the company officials. तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स करप्ट तरीके से काम करते थे, उनको भी ख़त्म करने का कोशिश किया मीर ज़फ़र ने. As a result, he was overthrown and turned out Bengal and Bihar. तो उसको भी ओवरथ्रोन कर दिया गया, निकाल दिया गया. In the Battle of Buxar, fought between the British and the Mir Qasim, the latter formed an alliance with the Nawab of Awadh, Sirajuddaulah, and the Mughal Emperor Shah Alam II. तो मीर कासिम को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने एक अलायंस बनाया. अलायंस का मतलब होता है जिसमें दो गुट आपस में शामिल होते हैं. तो इसमें दो गुट कौन कौन थे? एक था सिराजुद्दौला और दूसरा था मुग़ल के जो एम्परर था शाह आलम सेकंड. तो इन दोनों को जोड़ करके आर्मी के साथ मिल के काम करने को बोला गया था. देयर कंबाइंड आर्मी मेट द ब्रिटिश फोर्स एट द बैटल ऑफ बक्सर. तो दोनों ही जो मुग़ल एम्परर के शाह आलम सेकंड था और दो सिराजुद्दौला था, दोनों ने ही कंबाइंड अलायंस करा और बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में वो ब्रिटिश कंपनी के सामने वॉर के लिए प्रेजेंट हुए. Then they were defeated by the English. Thus, while in Palsi of British defeated a young and inexperienced Nawab, and that too through treachery in Buxar. तो बक्सर का जो युद्ध था, इसमें भी वही बात हुई कि the British defeated 3 powerful and battle hard rules. तो यहाँ पे 3 जो मेन पावरफुल साम्राज्य था, उनको बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया.
After this battle, the powerful Nawab of Awadh was left at the mercy of the British. तो जो अवध का जो नवाब था उसको दया करके ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया. द मुगल एम्परर बिकेम अ प्रिजनर ऑफ द ब्रिटिश. और जो मुगल एम्परर था वो टोटली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया. फ्रॉम द नवाब द बंगाल ऑफ ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी ऑन द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. और बिहार, ओडिशा एंड बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो टास्क था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया. Thus a dual government was established in Bengal where Britishers collected land revenue but the internal administration of maintaining law and orders and defense of the state remained with the Nawab. तो dual government रोल प्ले करने लगी बंगाल के अंदर. जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था जिसमें हम कह सकते हैं कि इंटरनल, नॉट इंटरनल, फॉर टेकिंग द लैंड रेवेन्यू, कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, ये वाला टास्क ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखा और इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नवाब के हाथों में दे दिया. जैसे डिफेंस का है, ठीक है, और मेंटेनिंग लॉ का है, फाइन. सो दस नवाब हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल पावर दैट वाज विद द ब्रिटिश. तो नवाब जो थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सिर्फ फाइनेंशियल पावर उनके पास नहीं थी. और फाइनेंशियल पावर किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास थी. Now the rich revenues collected from the Bengal provinces could easily meet the expenses of the East India Company, especially in matters of trade and maintenance of the troop. तो यहाँ पे जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था थ्रू द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, दे स्पेशली एक्सपैंड ऑन द मेंटेनिंग ऑफ द ट्रूप. वो कंपनी के ट्रेड में और कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके मेंटेनेंस में वो रुपीस खर्च किया जाता था. So this much is about Battle of Buxar. You have to be remember the सन 1764. और Battle of Palsi जो युद्ध हुआ था it is in 1757. Okay. Now next, expansion of the company's rule in India. तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को एक्सपैंड किया, कैसे पूरे कंट्री में हमारे उन्होंने अपने रूल को स्टैब्लिश कर दिया. So the British supremacy was established mainly by two methods. तो ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी थी, जो इनकी पावर थी, वो दो तरीके से इन्होंने हमारे कंट्री में उसका इम्पैक्ट डाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट एनेक्सेशन एंड इनडायरेक्ट एनेक्सेशंस मीन्स हथियाना. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, पंजाब एंड द सिंध वो एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशंस. डायरेक्ट एनेक्सेशन मीन्स आपने लड़ाई लड़ी और आप उन पर्टिकुलर एरियाज को जीत गए, तो ये डायरेक्ट एनेक्सेशंस हैं. द ब्रिटिश ऑल्सो सबड्यूड मराठास थ्रू वॉर. इन्होंने मराठास को भी अपने अंडर कर लिया. ऑन द अदर हैंड सब्सिडरी अलायंसेस एंड डिक्टोरियन ऑफ लेप्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट एनेक्सेशन. तो डिक्टोरियंस ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि इन this is a policy was known as a Dictorian of lapse. According to the Dictorian, if an Indian rule died without a male heir, his kingdom would lapse and it would be taken over by the East India Company with immediate effect. तो ये Dictorian of lapse है. इसका मतलब है कि कोई राजा का अगर if he has not any male heir, कोई उसका सन नहीं है जो कि उसकी साम्राज्य को संभाल सके, तो उस कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उसका जितना भी टेरिटरी थी, जितना भी उसका एम्परर था वो अपने अंडर ले लेती थी. तो ये पॉलिसी थी डिक्टोरियन ऑफ लेप्स विच इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एनेक्सेशन. ठीक है, जिसमें लड़ाई नहीं लड़नी है, चुपचाप आपने अपने अकॉर्डिंग द रूल यू हैव टू कीप द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर किंग. नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर. अब यहाँ पे किस तरह से ब्रिटिशर्स has won the Mysore. The South India state of Mysore had become strong under the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan. तो यहाँ पे साउथ इंडिया में जो स्टेट मैसूर में लीडरशिप चल रही थी हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की. So Tipu Sultan took up armies with the British when he stopped the export of people and carried him through his port and stopped permitting the local merchants from trading with the company. तो कंपनी के साथ जब टीपू सुल्तान था
उसने ट्रेड करने से मना कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अरेस्ट करने के लिए बोल दिया था। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। अब यहाँ पे जो हैदर अली टीपू सुल्तान थे, ये अपनी आर्मी को फ्रेंच की तरह मॉडर्नाइज करना चाहते थे। द ब्रिटिश वांटेड टू क्रश द रूलर्स ऑफ मैसूर, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मैसूर का जो रूल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्रश कर दिया जाए। हु वांटेड टू एसेट हिज इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि उनकी आज़ादी उनके हाथ में हो जाए। द ब्रिटिश फॉट 4 वॉर्स विद मैसूर रिस्पेक्टिवली। अब ब्रिटिशर्स के साथ मैसूर के अंदर विद मैसूर देर आर रिस्पेक्टिवली डेट्स के अकॉर्डिंग फॉट लड़ाई लड़ी, जैसे 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92 and in 1799. So in the first two war neither side won. फर्स्ट वॉर में तो कोई भी नहीं जीता, बट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड। तो जो थर्ड वॉर थी उसमें टीपू सुल्तान को हारना पड़ा। आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू हैड टू साइन द ट्रिटी ऑफ श्रीनागपट्टनम नेम्ड आफ्टर हिज कैपिटल। तो श्रीनागपट्टनम में एक ट्रिटी साइन की गई। टीपू हैड टू गिव अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, तो अपना आधा साम्राज्य उसने ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। एंड ओवर 2 ऑफ हिज सन्स हैज होस्टेज टू द ब्रिटिश, और जो उसके 2 बेटे थे उनको उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क करने का भी सेंक्शन साइन कर दिया था। सो फाइनली इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीनागपट्टनम। तो लास्ट में टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया गया और उसको मार दिया गया, और उसकी जो कैपिटल थी वो ब्रिटिशर्स ने हथिया ली थी। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कस्ड वॉर विद द मराठास। ओके, so how the Britishers cleverly took the advantages of the very innocent peoples of India we have seen. टीपू was called the tiger of मैसूर। आपको पता होना चाहिए कि टीपू को मैसूर का टाइगर कहा जाता था, बिकॉज ही वंस बैटल विद अ टाइगर अनआर्म्ड, क्योंकि एक बार उसने टाइगर के साथ लड़ाई लड़ी थी विदाउट एनी आर्म। सो ही हैड द इमेज ऑफ टाइगर ऑन हिज फ्लैग। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने अपने जो फ्लैग था उसमें एक टाइगर का इमेज बनाया था। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।